Hello, this is Vinod Kumar Berwa, Associate Professor of English from Government PG College Bandikui. Today I will discuss the famous poem of Sitakant Mahapatra's Election. Sitakant Mahapatra was born on September 17, 1937. He is in Orissa. He is one of the best known in Indian literature today. He is praiseworthy Oriya poet and critic. He is a good administrator, researcher, and translator. He has described vividly the traditions of Orissa. He has written a dozen of books on poverty and essay in Oriya, and also later translated and edited Oriya poetry and Oriya whatever he write down in Oriya into English. He is or he has described in his poems the poverty, hunger which destroy the village of Oriya, bring about starvation and death. He is a recipient of several awards including Soviet Land Nehru Award, the award of highest honor conferred on him by Soka University of Tokyo. He held several responsible posts in the state government of Orissa. Presently, Dr. Mahapatra is the chairman of National Book Trust in New Delhi. So, Jayant Mahapatra is Oriya poet and poet, essayist, critic, and administrator. इनका ज़्यादातर जो वर्क है, शोध कार्य है, ये पूरा उड़िया में है, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स एंड एसेस को ही ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड नाउ भारतीय साहित्य में टुडे ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेम. सो हम ये कहें कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो डे टू डे रूटीन लाइफ को लेकर के लिखा है, which is all are the burning issues of today. Jayant Mahapatra's poem, the present poem, Election, was composed, as I told you earlier, originally in Odia, but later he translated it into English. Sitakant Mahapatra has presented in this poem a realistic picture of the common, poor, and hungry villagers of Orissa. Starvation, death are the common events in the poverty stricken villages of Orissa, जहाँ पर कि गरीबी, भुखमरी और अभाव को पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ पर इस पोइम में दिखाने की कोशिश की है. द पुअर विलेजर्स सफ़र फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिप्राइवेशंस. उनको हर तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वंचित होना पड़ता है. बट ड्यूरिंग the vote, or to say, however, at the time of election, they exercise their rights to vote and thus discharge their duty as a citizen. Although they are vote for the some consideration, the electioneers are not insensitive of their poor plight. जो कंटेस्टेंट है, जो लड़ने वाले हैं, उनको उनकी हालत से कोई लेना देना नहीं है. दे आर अवेयर ऑफ द सफरिंग ऑफ विलेज वोटर्स. वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी स्थिति को जानते हैं, बट उसके बावजूद भी उनको उनसे किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है. उनकी जो स्टारवेशन कंडीशंस हों, उनकी जो क्रिटिफुल कंडीशंस हो, डेवलपमेंट की बात हो, उन सब को लेकर के जो पॉलिटिशियन हैं दे आर वेरी वेल अवेयर, बट दे आर नॉट making or they are not focusing any attention to develop that village or the basic amenities. But हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए द विलेजर्स अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य अपने मतों को दे सोल्ड आउट. और हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर ऑलरेडी मेड देयर चॉइसेस.
दे हैव ऑलरेडी मेड देयर चॉइसेस, बिकॉज अब जब उन्होंने समथिंग दे हैव ऑप्ट और समथिंग दे हैव गॉट फ्रॉम द इलेक्शनियर्स, देन उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है. द पोइट हैज़ रिवील्ड द नेगोशिएशन बिटवीन द इलेक्शनियर एंड द पुअर वोटर्स. द वोट्स आर ओपनली सोल्ड एंड बोट. तो यहाँ मतलब पहले से निर्णय हो चुका होता है. चुनाव प्रचार के दौरान गरीब मतदाताओं के साथ किस तरीके से जो सौदेबाजी की जाती है उसको यहाँ खुले रूप से रिप्रेजेंट किया है कि कैसे खुले रूप से जो वोट हैं खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं. सो let's come on the text. I would like to read the text, then we'll discuss the difficult words, and later on we will explain the poem in detail. So come on, the text. So look at the title of the poem, The Election, written by Sitakant Mahapatra. Our jeep grovels to your place, seeking strange melodies from the roaring sun, the common will from the criss-cross geometry of private agonies. So look at our jeep crawls move slowly during the election time. The jeep is moving very slowly. द जो जो प्रचार प्रसार करने वाली चुनाव है जो वो बहुत मंद गति से चलती है. टू आवर विलेज सीकिंग स्ट्रेंज मेलोडीज. एंड उस दौरान वो छुपी हुई जो है ना मतलब इच्छाएं हैं और उस चुनाव प्रचार की सामग्री है वो लेकर के अपने साथ में और गीत के साथ में वो इन चीज़ों को सॉन्ग चल रहा होता है और वो अपने जो इलेक्शन ईयर है उसका प्रचार प्रसार कर रही होती है. फ्रॉम द रोरिंग सन ड्यूरिंग द डे टाइम. सो दिस इज a wonderful image that has been presented by Sita Kant Mahapatra ji. The common will, the desire of the voters, the जनता की इच्छा क्या है. फ्रॉम द criss cross geometry line of private agonies. Criss cross, the line crosses each others means ज्योमेट्री लाइन क्रॉसेस ईच अदर लाइंस मीन्स कि जहाँ दोनों आकर के मिलते दोनों की इच्छाओं का मीट आउट होता है, चाहे इलेक्शन ईयर हो चाहे वोटर्स हो, दोनों की इच्छाएं जहाँ आकर के मिलती है. यानी कि गरीब और जो कहा जाए कि चुनाव की जो इच्छा रखने वाले हैं जो चुनाव के पोस्टर और चुनाव चिन्ह लेकर ग्रामीणों की मानसिकता को एक तरीके से जांचने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के जो दोनों के हित और अहित यानी कि द प्राइवेट एगोनिस्ट द सफरिंग ऑफ द विलेजर्स, उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनकी कष्ट हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है. वो प्राइवेट हैं, वो केवल विलेजर्स की हैं. इलेक्शनियर को कोई लेना देना नहीं है. आवर डार्क अगनीज डोंट टच यू. जो अब नाउ राइट नाउ द विलेजर्स की जो डार्क अगनीज हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो सफरिंग्स हैं, दैट वो उनको छू नहीं सकते, वो बिल्कुल भी उसको टच ही नहीं करते हैं. नॉर आवर ट्रैपिंग्स, और ना ही किसी तरीके का जो उनके साथ में जो कहा जाए कि ट्रैपिंग्स जो साजो सामान है उनके जो अवेलेबिलिटीज़ हैं उनके लिए जो तक चीज़ें होनी चाहिए उन सब से उसका कोई लेना देना नहीं. और किस चीज़ की बात करते हैं, वो केवल यहाँ पर चुनाव प्रचार पोस्टर चिन्ह जो ग्रामीणों की मानसिकताओं को छूते नहीं. अब मतलब सीधे शब्दों में कहें कि उनको गरीबी से कोई लेना देना नहीं है. और पोस्टर्स, हाँ देखिए, नॉर आर ट्रैपिंग्स ऑफ पोस्टर्स सिंबल्स स्पीचेज हैंडबिल्स ऑफ योर ग्रीफ आउटलिव एम्पायर्स. सो हियर द सेज ट्रैपिंग उनको कट आउट नहीं कर सकते, उससे सारा सामान जो है उसको मतलब पूरी तरीके से टच नहीं करते. क्या क्या होता, पोस्टर्स हो सकते हैं, सिंबल चुनाव चिन्ह हो सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए स्पीचेज हो सकते हैं, भाषण हो सकते हैं, हैंडबिल्स के और रिटर्न में हाथ में जो पोस्टर्स लेके आ रहते हैं बोलते हैं कि हाँ हम आपके सामने ये करेंगे. वो जो झूठे वादे जो करते हैं जिसको मैं अपन कहें कि उनके द्वारा जो एक घोषणा पत्र होता है उसके बाद फॉर योर ग्रीफ आउटलिव एम्पायर्स. और देखिए तकलीफ़ें आपकी हैं, पीड़ाएँ आपकी है, सर्वाइव आपने करना है. तो ग्रीफ तकलीफ़ें, दुख, आउटलिव सर्वाइव, टू कंटिन्यू द एम्पायर्स. तो जो जो कहेंगे कि ये साम्राज्य है दैट विल बी कंटिन्यू. सो यहाँ पर चुनाव प्रसार में छिपी हुई इच्छाएं, पोस्टर, चुनाव चिन्ह, ग्रामीणों की जो
मानसिक स्टेटस है, मानसिक यंत्रणाओं को नहीं छूते, अर्थात वो ग्राम के मतदाताओं को करीब से जानने का कोई उनका वास्ता नहीं है। गरीबी से आक्रांत अथवा पीड़ित जो ग्राम के मतदाता हैं, उनकी यंत्रणाओं साम्राज्य से अधिक समय तक बने रहती है, मतलब कि वो केवल जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो इलेक्शनियर हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनको केवल अपनी को विजयी करने से हैं। सरकारें आती हैं, साम्राज्य आते हैं, चले जाते हैं, बट है ना, ही सेज योर ग्रीफ आउटलिव एम्पायर्स, कि आपका जो दुख तकलीफ है दैट विल बी कंटिन्यू, एम्पायर्स विल कम एंड गो, भुखमरी, मौत, दुख सदा यहाँ पर स्थापित रहने वाली है। यानी कि टू से द पोइट हेयर कंपेयर द वोटर्स, जो जो उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको पोस्टर, चुनाव चिन्ह और भाषणों की ओर इशारा करते हुए उनके साथ में तुलना कर रहे हैं कि भाई देखिए तुम्हारी इनसे कोई इनका वास्ता नहीं है। जो इलेक्शन में प्रचार प्रसार करने वाली जो जीप है दैट इज़ मूव वेरी स्लोली, इट्स क्रॉलिंग जस्ट लाइक क्रॉलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक एंड जो उनको जो है लुभाने की कोशिश करती है जीप जो है, उसमें थ्रू आउट द म्यूजिक वो उनको लुभाने का प्रयास करती है। द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन, कोल्ड सिंपली से द नेक्ड वन, ग्रैंड चिल्ड्रंस जो उनके बच्चे हैं, अवेकन ऑफ योर हार्ट, उन्हें नहीं पता है कि अब क्या होने वाला है। एज यू डिसर्न, एज यू कैन लुक क्लियरली द म्यूटेड एलेगरीज जो कि परिस्थितियाँ जो बहुत आसानी से धुंधलेपन के साथ में देखी जाए, म्यूटेड वेरी डिमली, एलेगरीज दिस इज सम सॉर्ट ऑफ squint satire on our asses faces, the faces which are pale dumb, उनके ऊपर मतलब कहा जाए कि गांव में किसी तरीके का कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। वो बस शॉर्ट टेम्पटेड है, शॉर्ट अपनी जो डिजायर्स है, इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए उनसे कुछ ले लेते हैं इलेक्शन ईयर से, एंड उस दिन का वो सौदेबाजी कर लेते हैं, और लेटर ऑन फिर व्हाट हैपन्स वो उस पर और कोई चिंता की बात वो नहीं करते हैं। हियर द ग्रेट परस्यूट्स, हियर सम सॉर्ट ऑफ द अलग अलग ट्रिक्स को यूज किया जाता है द वोटर्स को परस्यूट कराने के लिए, मनाने के लिए। आर लिटिल थिंग्स एंड नॉट सो हिडन, सम सॉर्ट ऑफ लिटिल थिंग्स उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है गाँव वालों को। उन बच्चों के लिए चीप प्लास्टिक, चीपर नायलॉन, प्लास्टिक के जो बने हुए आर्टिकल्स हैं वो, चीपर नायलॉन के सन ग्लासेस हो सकते हैं, डार्क ग्लासेस टू बी ब्लॉट आउट द सडन द सन, तो जो उस नायलॉन के जो स्पेक्टिकल्स जो है उनको दिए जाते हैं, चश्मे गोगल्स उनको दिए जाते हैं, सो दैट वो जो लाइट डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट है उसको थोड़ा सा छुपा सके, हिडन कर सके, उसको कम कर सके। सो हियर इलेक्शनियर्स आर नॉट इंसेंटिव टू द सफरिंग्स ऑफ द पुअर विलेजर्स, उनको कोई लेना देना नहीं है। दे आर अवेयर ऑफ देयर सफरिंग्स, द पुअर विलेजर्स और टू से द पुअर वोटर्स फुली अंडरस्टैंड द falsehood ऑफ द मैनिफेस्टो ऑफ द कैंडिडेट्स who contest the election. The manifesto will not eradicate the poverty, the sufferings, the problems of the villagers. The electioneer give the naked grandchildren of the to say village voters some sort of the cheap plastic things, the still cheaper nylon things, the dark sunglasses to protect their eyes from the hot rays of the sun in order to appear or to say in order to appease the village voters. But the village voters have already made their choices. They will where they will cast their vote, they have decided already. The जो एक सौदेबाजी है that has been already done. This is the real picture of the candidate who contest the election and the poor villagers who vote cast in the backward zone. So this is a wonderful picture created by Sitakant Mahapatra, with one foot of in hunger and the other in the soul, and you make your decision the anguish of your choice with one foot in hunger, क्योंकि एक कदम जो आपने आगे बढ़ाया गरीबी में, भूखमरी में, and other in the soul. अब here there is a some sort of a deal between the
electioneer and the voter, you make your decision already. If once you received some sort of any amenities from the, जैसे कि कोई भी आपने एक गिफ्ट वहाँ से ले लिया है इलेक्शनियर से, then you have made your decision. You make your decision to angus of your choice, और आपका मेंटल स्टेटस है, आपकी जो मेंटल स्थिति है उसका बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाता है. तो इस पॉइंट के अंदर जो चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के दुखों के प्रति बिल्कुल जो इलेक्शनियर्स हैं, जो उनको वोट लेना है, उनको कोई लेना देना नहीं है. वो उनके दुखों से, तकलीफ़ों से पूरी तरीके से परिचित है. और इसके साथ में देखें कि गरीब मतदाता चुनाव लड़ने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज हैं, उनकी जिसको कहा जाए कि असत्यता, मिथ्या, झूठापन को पूरी तरीके से समझते हैं. एंड दे नो वेरी वेल कि वो किसी तरीके की कोई गरीबी को उन्मूलन करने का कोई उनका प्लान नहीं है. और वो गांव वाले जो मतदाताओं को संतुष्ट, मतलब चुनाव प्रचार जो गांव के मतदाता हैं उनको संतुष्ट करने के उद्देश्य से उनके जो पोते पोतियां हैं उनको प्लास्टिक की कुछ सस्ती चीज़ें देते हैं. और कुछ सस्ती चीज़ों में आप जैसे नायलॉन से बने हुए जैसे सन ग्लासेस हैं, उनको वो दे देते हैं. तो इस तरीके से गांव के मतदाता अपनी पसंद पहले ही से ही की आप डिसाइड कर ले, क्योंकि वंस यू गोट सम शॉर्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एनीवन, देन यू हैव नो ऑप्शन टू, क्यों अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. सो दिस इज द पोइम. And the major, or to say the main things which are, or the important things in this poem are, I think I'm giving to you in a very short. The poet Sitakant Mahapatra has presented the realistic picture of the poor village and hungry people, or to say hungry voters of Orissa. Starvation, death are the common event in the poverty-stricken villages of Orissa. The poor voters of Orissa vote for getting some money. uh, Sitakant Mahapatra has revealed through the poem the election negotiation between the electioneer and the poor voters of the Orissa. द पोइट ऑल्सो सेज दैट कि जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ साथ उनका जो किस तरीके से डीलिंग है, दैट हैज़ बीन क्लियरली रिप्रेजेंटेड इन दिस पोइम. द पोइट सीताकांत महापात्रा सेज दैट थ्रू दिस पोइम द इलेक्शन दैट द वोटर्स ओनली ओपनली सोल्ड एंड बोट, उनको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है. द पुअर विलेजर्स, और टू से द पुअर वोटर्स fully understand the falsehood and the manifesto of the candidates who contest the election. वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वट एवर दे आर डिक्लेयरिंग और टू से उनसे जो प्रोमिस कर रहे हैं, ऑल दीज आर द फॉल्स. द पुअर विलेजर्स, और टू से द पुअर वोटर्स नो that the manifesto of the candidate who is contesting in election will not eradicate the poverty of the village. The election gives the naked grandchildren of the poor villagers, or to say poor voters, some cheap things, still cheaper, that is the made of nylon, the dark sunglasses, in order to appear the village voters. Mahapatra says that the government and empires come and go, but the poverty, hunger, starvation, death, sorrow of the villagers will be everlasting in the Orisha villages. He also says that Sitaram Mahapatra ji says that the grief of the poor and the hungry people lives beyond empires. Government and empires come and go, but their poverty, hunger, starvation, death go on forever. So in this, so this is all about the beautiful poem "Election" written by Sitakant Mahapatra. With this note, I would like to conclude my topic election. Thank you very much. I think you have been clear with the concept of the poem. Have a nice day.